کریں ہم کب آ گئے والیوم صحیح ہے. ہیلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین السلام علیکم. آج کے اس تقریب کو ہم نے نام دیا ہے پیارا پاکستان. ہم سب بڑے پیارے لوگ ہیں, ہمارا جس طرح ملک بڑا پیارا ہے. ہم نارتھ میں چلے جائیں خوبصورت لوگ, خوبصورت وادیاں. ہم ساؤتھ میں چلے جائیں خوبصورت سمندر ہے ہمارے پاس, خوبصورت لوگ. اکنامی کا ایک وسیع کاروبار ہمارے ملک میں ہے, اور ہمارے ملک میں جو خصوصیات ہیں آج ہم اس پر بات بھی کریں گے. آج 23 مارچ بھرپور طریقے سے بنائیں گے پاکستانی بن کر کے, اور دکھائیں گے کہ کس طرح ہم بناتے ہیں, ہمارے اندر کتنا جذبہ ہے. ریزولیشن ڈے بنایا گیا تھا ایک دفعہ 23 مارچ 1940 کو. آج شکاگو میں ہم رہ کر یہاں پہ ثابت کریں گے اپنی پوری پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ کہ ہم یہاں رہ کر بھی پاکستان کی یاد اپنے دل سے نہیں نکال سکتے. پروگرام کی ابتدا میں آپ کو پتا ہے جیسے کہ ہم تلاوت کلام پاک سے شروع کریں گے. منیب صدیقی کو میں دعوت دیتا ہوں کہ اپنی آواز میں خوبصورت تلاوت سنائیں, اور آپ سے درخواست ہے کہ پلیز تلاوت بڑی غور سے سننی چاہیے اور خاموشی سے سننی چاہیے. منیب صدیقی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. جزاک اللہ منیر صدیقی. منیر صدیقی بھی حال ہی میں سیکنڈ پوزیشن ڈسٹرکٹ میں حاصل کی ہے قرت فانی کے مقابلے میں, تو ان کی داد رضائی ضرور ہونی چاہیے. میں اپنے دوسرے گیسٹ کو بلاؤں گا جو نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے. آپ کی خوبصورت اور جانی پہچانی آواز اور کمیونٹی میں کافی ایکٹیو فیصل صاحب کو زحمت دوں گا کہ آئیں اور وہ نعت شریف پیش کریں. بہت شکریہ. سوری احمد بھائی چاہ رہے ہیں کہ ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں, پھر اس کے بعد نعت آپ یہیں پہ بیٹھیں, پھر ہم سب کو سناتے ہیں, پھر تھوڑی دیر بعد آپ کو نعت شریف بھی سناتے ہیں. جی احمد بھائی, احمد کریم چاندہ صاحب. کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر, اللہ اکبر اللہ اکبر. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں, کبھی دیکھتا ہوں میں صحن حرم کو. لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر, اللہ اکبر اللہ اکبر. حمد خدا سے تر
بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قطرے کو جیسے سمندر سمیٹے، مجھ کو مطاف اپنے اندر سمیٹے، جیسے سمیٹے آغوش مادر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے سنگ اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، کس کو آداب یہ سکھاتے نہیں ہیں، کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تیرے کرم کی کیا بات ہے مولا، تیرے حرم کی کیا بات ہے مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مولا شبر اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جزاک اللہ احمد بھائی۔ احمد بھائی کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ کمیونٹی میں کافی ایکٹیو ہیں اور فاؤنڈنگ ممبر ہیں مسجد خدا کے، اور پاس پریزیڈنٹ میمن ایسوسی ایشن آف امریکہ کے ہیں، کرنٹ پریزیڈنٹ فیڈریشن آف سبربن پاکستان ہیں، کرنٹ پریزیڈنٹ آف فرینڈس آف کمیونٹی کے لیے کام کر رہے ہیں محسورین پاکستان کے لیے، بڑی خدمات ہیں ان کی۔ صدر الدین نورانی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، احتشام الدین ارشد صاحب بڑا کام کر رہے ہیں محسورین پاکستان، ان کو خوراک پانی اور بجلی جیسی سہولتوں کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں۔ احمد بھائی کا حصہ بڑا اہم ہے اور وہاں جاتے ہیں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ میں اپنے دوسرے مہمان جناب فیصل صاحب کو زحمت دوں گا کہ وہ نعت شریف پیش کریں اور ہمارے سامعین کو غور سے سنیے۔ بہت شکریہ فیصل۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ایک میں ہی نہیں ان پر، ایک میں ہی نہیں ان پر، قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر، قربان زمانہ ہے، جو رب
ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر، عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر، ویسے بھی ہمیں ایک دن، ویسے بھی ہمیں ایک دن دنیا سے تو جانا ہے، ویسے بھی ہمیں ایک دن دنیا سے تو جانا ہے، پر نور سی راہیں ہیں، گنبد پہ نگاہیں ہیں، پر نور سی راہیں ہیں، گنبد پہ نگاہیں ہیں، جلوے بھی انوکھے ہیں، منظر بھی سہانا ہے، جلوے بھی انوکھے ہیں، منظر بھی سہانا ہے، یہ کہہ کے درے حق سے لی موت سے کچھ مہلت، یہ کہہ کے درے حق سے لی موت سے کچھ مہلت، میلاد کی آمد ہے، میلاد کی آمد ہے، محفل کو سجانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ فیصل، بہت شکریہ۔ اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور جوش و جذبے، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، زبردست۔ پروگرام ہمارا، کیونکہ آپ کو پتہ ہی 23 مارچ کے حوالے سے یہ وہ دن ہے جب ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ ہندو اور مسلمان دو علیحدہ قومیں ہیں، دو قومی نظریہ پیش کیا گیا اور ایک خوبصورت پاکستان آپ کو دیا گیا۔ قائد اعظم علامہ اقبال، لیاقت علی خان، بہت سارے نام ہیں جنہوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، ایک خوبصورت سا ملک آپ کو دیا، اور آج ہم ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں اور فخر سے کہتے ہیں۔ اگر ہمیں پوچھنا ہے کہ آزادی کی نعمت کیا ہے تو آپ کشمیریوں سے پوچھیں، آپ فلسطینیوں سے پوچھیں کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج ہم پاکستان کا پاسپورٹ لے کے گھوم رہے ہیں، یہاں پر آتے ہیں، اسی پاسپورٹ پر آتے ہیں، یہ بہت بڑا کام کیا ہے قائد اعظم نے۔ اور پروگرام میں کیونکہ بہت ساری تقاریر بھی ہیں، آپ کو محسوس بھی کریں گے میوزک سے بھی۔ میں شکریہ ادا کروں گا پاک انٹرنیشنل کے توسط سے یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے کہ
अहमद करीम जांडा साहब, कादिर सौदागर साहब, अल्ताफ डांडिया साहब अपनी मसरूफियात की वजह से नहीं आ सके, और परवेज़ अल्ताफ साहब उनका बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने ये प्रोग्राम को तरतीब दिया, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का डे है, कोरोना भी चल रहा है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम पाकिस्तान का डे ज़रूर बनाएंगे, रेजोल्यूशन डे यहाँ पर, और ये यौम पाकिस्तान की तकरीब को सजाने में बड़ा कलीदी किरदार इन लोगों ने अदा किया है, तो इनके लिए बहुत सारी तालियाँ होनी चाहिए। मैं अपने पहले मेहमान को ज़हमत दूंगा, बड़ी अहमियत के हामिल हैं, बड़े राज इनके सीने में हैं पाकिस्तान के हवाले से। जब पाकिस्तान एटमी ताकत बन रहा था, ये वहाँ मौजूद थे। पाकिस्तान की अफवाज को गैर मुल्क में भेजा गया मुसलमानों की मदद करने के लिए, ये वहाँ भी मौजूद थे, और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे प्रोग्राम में भी मौजूद हैं। मैं जनाब मेजर हिफ्ज़ुर रहमान साहब को ज़हमत दूंगा कि वो आने वाली टेक्नोलॉजी जो पाकिस्तान के पास है उससे आपको आगाही देंगे, वह पाकिस्तान किस तरह तरक्की कर रहा है। जनाब हिफ्ज़ुर रहमान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, मेरी जो स्पीच है मैंने उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया है। एक 23 मार्च के हवाले से, और दूसरा जो है करंट जो सिचुएशन चल रही है मैं उसके बारे में बात करूँगा। इट विल बी वेरी शॉर्ट। 23 मार्च इसके बारे में तो हम बहुत कुछ सुन चुके हैं, और 23 मार्च 1940 को मंटो पार्क लाहौर में कायद-ए-आज़म की ज़ेर सदारत एक जलसा हुआ था। उसमें और भी अफराद थे, लेकिन ये जो करारदाद मंजूर हुई थी, इसमें 2 करारदाद मंजूर हुई थी। एक तो थी पाकिस्तान के एक अलहदा इस्लामी मुमलिकत मुसलमाना हिंद के लिए, और आप सुन के हैरान होंगे कि उस वक्त जो दूसरी करारदाद मंजूर हुई थी वो फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए एक अलहदा रियासत का क़याम। उन्होंने कहा था हम इसको सपोर्ट करेंगे, जो हम भूल चुके हैं, लेकिन फ़लस्तीनियों को ये चीज़ याद है। 23 मार्च के हवाले से बता चलूँ कि विदिन 7 ईयर्स हम लोगों को एक अलग मुल्क मिला, और क्या मिला वो भी मैं आपको बता देता हूँ। टोटल 3 जहाज़ मिले थे, हवाई जहाज़। एक में बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म बैठ कर आए थे, इसको DC-3 वो जो पीछे से ऐसे उठा होता है, वो पाकिस्तान एयरफोर्स के म्यूज़ियम में आज भी मौजूद है। 2 जहाज़ जो थे वो डकोटा सिंगल इंजन थे, ये पाकिस्तान की तकसीम के वक्त मिला था। कुछ आर्टिलरी पीसेस और फौज के कुछ हिस्से मिले थे। जो भी था, जो मुकम्मल चीज़ मिली थी वही थी ग्रैंड ट्रंक रोड कराची से पेशावर, और दूसरी थी रेलवे लाइन जो आज भी कायम है, और तीसरी एजुकेशन में हमें सिर्फ एक यूनिवर्सिटी मिली थी, और वो थी पंजाब यूनिवर्सिटी। टेक्सटाइल हब टोटल इंडिया में था, कानपुर, इलाहाबाद वगैरह वगैरह सब फैला हुआ था। एजुकेशन हब अलीगढ़ में आप चले जाइए, इलाहाबाद में चले जाइए, लखनऊ में चले जाइए, वहाँ पे सब तालीम जो थी वो अंग्रेज़ ने फैलाई थी, क्योंकि ये हब्स थे जो कि आज भी ज़्यादा आबादी वहाँ पर मौजूद है। उसके बाद जो तरक्की हुई, जो भी हुकूमतें आई, आज माशाल्लाह आप ये है आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्स है, नेवी है। इसी तरह हमारे पास सिस्टम्स बिल्ड किए, टेक्सटाइल सिस्टम बिल्ड किया, वन ऑफ द बेस्ट टेक्सटाइल्स वी प्रोड्यूस। ये एक अलग बात है कि हमें अमेरिका में कुछ सियासी उसके ऊपर इजाज़त नहीं मिलती, अदरवाइज मैं कुछ जगहों पर गया हूँ अमेरिका में, जहाँ पर पाकिस्तानी टेक्सटाइल देखकर आंखों में आंसू आ गए, बड़ी खुशी हुई। इसी तरह से अब मुझे अंग्रेज़ों ने बताना शुरू किया कि जी फलां स्टोर में पाकिस्तानी स्टफ बिक रहा है, आप ज़रूर जाइए। सिर्फ देख के ही खुशी होती है कि मेरा मुल्क है। ये तो था मुख्तसरन। अब मैं आता हूँ दूसरे पोर्शन में। लातादाद एनवायरमेंट्स चेंजेस आ रही हैं आजकल पाकिस्तान में, और एक तरीके से अगर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा स्टडी रखता हूँ। मेरा ताल्लुक जो है वो बज़ाते खुद फ़ौज से रहा, और मैं एक लड़ाका दस्तों से मेरा ताल्लुक रहा। फ़ौज के 3 हिस्से हैं लड़ाका दस्ते, उनको सपोर्ट करने वाले और उनके पीछे चलने वाले लोग। इत्तफाक से मैं तीसरी जनरेशन, और माशाल्लाह मैं ये कहूँगा कि मेरे भांजे भतीजे भी इस सब फ़ौज में हैं, और दो पे मैं बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा मुझे फ़ख्र है। एक तो मेरा भतीजा सगा, ही इज़ अ फाइटर पायलट F-16 का, और एक मेरी सगी भांजी जिसको मैंने ही ट्रेन किया था, शी इज़ अ वेरी
क्रूर लेडी एंड शी इज वर्किंग एट अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेस। जब ये अभिनंदन वाला सीन हुआ था तो वो शोर कोर्ट में रडार पे मौजूद थी और इसकी स्टोरी में आगे आपको बताऊंगा। अब मैं इसी स्टोरी से चलता हूँ। अभिनंदन वाला जो हुआ, जो कुछ भी हुआ मैं उस पर नहीं जाता, लेकिन इंडिया ने क्लास के झूठ बोलने की कोशिश की दुनिया भर में। ये तो लेडी यहाँ बैठी तशरीफ रखती है डिप्लोमेटिक चैनल के ऊपर, और दूसरे जो भी इनके थे कि जी हमने तो F-16 गिरा दिया, पाकिस्तान का F-16 गिरा दिया। जो F-16 की लॉकहीड कंपनी है, उन्होंने पाकिस्तान एक बाकायदा टीम भेजी कि इज इट फैक्ट दैट यू लॉस्ट F-16। तो पाकिस्तानियों ने कहा जी आप ये खड़े गिर लें, और उनको जब गिरा तो दे वर ऑल इंटैक्ट। एक झूठ। फिर लॉकहीड कंपनी ने इंडियन गवर्नमेंट को ये बोला कि वी आर गोइंग टू सू यू बिकॉज हमारी जो टेक्नोलॉजी है हम इसको बाकायदा इसका रिकॉर्ड रखते हैं, और हम अगर लूज करते हैं तो वी कम टू नो कि हमारे अंदर क्या खामी थी। तो उसके ऊपर खामोशी छा गई। और उसके बाद मैंने एक दो और भी प्रोग्राम देखे जिसमें बड़े बड़े वाशिंगटन में और आगे पीछे इनके, जिसमें कि झूठ को उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि इंडियंस ने झूठ बोला। आई टेक ऑन स्लोली एंड ग्रेजुअली गवादर। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे अच्छा एलाई जो है वो चाइना है। गवादर सी पैक का हब है, और लाज़मी बात है इसको अरबों को भी ये चीज़ पसंद नहीं थी कि गवादर जो है वो ऊपर आए। और उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए और इंडियन थ्रेट्स और दूसरे थ्रेट्स को मद्देनजर रखते हुए चाइनीज़ ने जो हमें गवादर का डिफेंस प्रोवाइड किया है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें एक हवाई अड्डा वहाँ पर बनाया गया है, F-16 वहाँ रखे गए हैं, रडार लगाए गए हैं, और पानियों में भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म के फ्रिगेट्स प्रोवाइड किए गए हैं जो कि हर वक्त वहाँ मौजूद हैं। किसी भी एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं जो कि गवादर को तबाह करना चाहते हों उनको रोकने के लिए। अब मैं यहाँ पे और भी एक चीज़ बता दूँ। आपने रिसेंटली सुना होगा अभी पिछले महीने में कि एक जी वो अरुणाचल प्रदेश में एक एवालांच आया, वो बर्फ़ की आ गई, वो सब वो इंडिया के काफ़ी चीज़ें थी बहा के ले गया और ये हो गया। ये क्या था? 2-3 हफ्ते पहले आपने ये भी सुना होगा कि मुंबई में 5 दिन बिजली नहीं थी। वो क्या था? उसको कहते हैं EMP, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक पल्स। ये चीज इस वक्त दुनिया में सिर्फ 4 ममालिक के पास है, अमेरिका, इसराइल, चाइना और अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास भी है। ये चीज जो है इट हैज बीन केप्ट वेरी वेरी सीक्रेट। जब जरूरत पड़ेगी उस वक्त दिखा देंगे, जिस तरह के हमने अपनी काउंटर जो किया था अभिनंदन वाला। दिस वॉज द पार्ट अभिनंदन वाला जो था, जो हमने उनको काउंटर किया था, वो बहुत तरीके से किया था कि उनके जितने भी ग्राउंड रेडार्स, जितने भी उनके एयरबेसेस हैं पंजाब में, कश्मीर में, उन सब के जितना भी वायरलेस सिस्टम था उसको जैम कर दिया गया था। और वो चीख रहे थे आपस में कि तुम कहाँ हो, जिसकी आवाज़ें भी आपने सुनी होगी, लेकिन एक दूसरे से कम्युनिकेशन में नहीं थे। उनको जैम करने के बाद ये 2 पायलट्स थे जिन्होंने हमारे जहाज़ गिराए, उन दोनों को बाआसानी आपस में मिलाप रखते हुए मार गिराया गया। अब मैं आता हूँ आज़रबाईजान। नाम सुना होगा जी, पाक फौज ने ये कर दिया, पाक फौज ने वो कर दिया। नो, नॉट एट ऑल। पाक आर्मी वहाँ इस्तेमाल नहीं हुई। पाकिस्तान आर्मी जहाँ भी इस्तेमाल होती है वी डोंट डिस्क्लोज इट। लाइक अगर कहीं जरूरत पड़ गई, जो पड़ गई थी जिसमें बोस्निया शामिल है, उसमें मैं भी शामिल था उसमें, क्योंकि वहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये था कि वो यूगोस्लाविया जब टूटा तो उसके 3 हिस्से हो गए थे। बहरहाल बोस्निया वाज वन ऑफ देम, जिसमें मुसलमान आबादी बहुत ज़्यादा थी। तो वो लड़कियों को और औरतों को रख लेते थे और जो मर्द थे हजरात उनको गोली मार देते थे। उस वक्त वी वेंट देयर और उनको सेव किया, उनके कैंप्स से उनको निकाला, और निकालने के बाद उनको सेव वॉट एवर वी टुक, हम टैंक्स लेकर गए थे, रडार सिस्टम, मिसाइल सिस्टम, वो बोस्निया की आर्मी को तोहफा दे दिया गया था। दैट्स हाउ दे रेज देयर आर्मी। ये जो आज़रबाईजान वाला जो हुआ, इसमें पाकिस्तान ने 2 चीज़ें उनको सप्लाई की। एक MBRL, ये फिल्मों में आपने देखा होगा, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, ये के बाद फायर होते रहते हैं, फिल्मों में देखा होगा। इनका रेंज
अभी तक जो था वो तो था सिर्फ 30 किलोमीटर, जो पाकिस्तान ने डेवलप किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बताते चलूँ 175 किलोमीटर तक, ये पाकिस्तान की इंडिजिनस प्रोटेक्शन है माशाल्लाह। तो इस तरीके से जब उनको ये प्रोवाइड किया गया, और सेकेंडली वी प्रोवाइडेड देम ड्रोन्स, टर्की ने भी दिए, लेकिन पाकिस्तानी ड्रोन्स यूँ ज़्यादा इफेक्टिव रहे कि जो हमारा सफारत खाना है वहाँ पर, उसमें जो डिफेंस स्ट्रेटजी एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, जो दिफाई अत्ताशी थे कर्नल साहब, वो उनके एडवाइज़र बन गए और ऑन ग्राउंड फोर्सेस जो आर्मीनिया की थी उनके खिलाफ उन्होंने मनूवर्स एनवायरमेंट्स कराई। उससे फ़ायदा ये हुआ कि लाज़मी बात है ऑन ग्राउंड जब आपको एडवाइस मिल रही है तो फिर और क्या चाहिए, एक्सपीरियंस जिसको आप कहते हैं। और वो कर्नल साहब इतने मशहूर हो गए हीरो के तौर पे, मैं नाम उनका नहीं लूँगा, कि मतलब लिटरली वो पाकिस्तान के झंडे के साथ लोग जो थे वो बाहर आ गए सड़कों पर, एंड आर्मीनिया से 30 साल के बाद अज़रबैजान में अपनी जो इलाका था वो खाली करा लिया, उस पर कब्जा किया, मसाजिद को बहाल किया, सफाइयाँ हुई, और इस तरीके से पुरानी जो उनकी जो चीज़ें थी उनको उन्होंने कब्जे में ले लिया। दिस वॉज ऑल पार्ट ऑफ पाकिस्तान आर्मी। इन फिजिक्स आप कह रहे हैं कि फिजिकली पाकिस्तान आर्मी वहाँ इस्तेमाल नहीं हुई। अब आखिर में मैं टच करता हूँ इंडिया को, जो उन्होंने आर्टिकल 370 इम्पोज किया 2019 में, और उसके बाद जो हालात वहाँ पे हुए बहुत ही मुश्किल हालात थे, क्योंकि उस वक्त तक किसी भी सूरत में पाकिस्तान रिएक्ट नहीं कर सकता था। और मैं ये कहूँगा जो इमरान खान साहब ने तारीखी तकरीर की वहाँ यूएन में, वो एक माने रखती थी, इट वॉज वर्थ वॉचिंग। इंडिया इस वक्त अंदर से बिल्कुल खोखला है। मोदी सरकार, जिसको अब उसके चंद मिनिस्टर्स ने भगवान करार दे दिया, नाउजुबिल्लाह कि जी भगवान है करार, उनको समझ नहीं आ रही किस तरह से काउंटर करें। एक तरफ से चीन और दूसरी तरफ से पाकिस्तान। जो टेक्नोलॉजी मैंने आपको बताई है माशाल्लाह, वो दोनों तरफ मौजूद है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो चाइना ने स्वाइप किया है अंदर की तरफ, और वो बढ़ते चले गए हैं, इतना तक आ गए कि इंडियन आर्मी के पास मास्क वाले मुँह छुपाने की और कोई चीज़ नहीं है। इस वक्त दुनिया की वर्स्ट तरीन जो कह लें आप फौज है, जिसमें खुदकशियाँ, जॉब छोड़ के भाग जाना, और उसके बाद डिजर्शंस, उसके बाद और सारी चीज़ें इतनी हैं, इट्स सो डिफिकल्ट, उनके लिए इतना मुश्किल हो गया कि दे हैव ब्रॉट देयर बैड नेम्स टू इंडिया। अभी मैं कल की खबर पढ़ा था कि देवर फाइट बिटवीन द जनरल्स, टॉप नॉच जनरल्स के दरमियान जंग, बदतमीजियाँ और लड़ाई शुरू हुई है। ये इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जब हम अपने आप को देखते हैं तो वी आर फार बेटर। जो आपने सुना होगा कि बांग्लादेश के साथ भी इनका एक वो चल रहा है, अल्लाह ताला ने कहीं ना कहीं किसी चीज़ का मुंबा रखा हुआ है, और वो है ब्रह्मपुत्रा, एक दरिया है जो कि जिसका ओरिजिन तिब्बत से है, और वो पानी जो है सेल्स थ्रू इंडिया और बांग्लादेश में आके खलीज बंगाल में गिरता है। चाइना ने उनका वो पानी रोक दिया है, इन्होंने हमारा पानी रोका, रावी चनाब इस वक्त सूख गए, चाइना ने उनका वो पानी बंद कर दिया है, एंड इस तरह से इंडिया का जो पानी फ्लो कर रहा था वो बंद हो गया। ये है, और इसमें मैं ये कहूँगा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात मुझे याद आती है कि तालीम हासिल करो बेशक चीन जाना पड़े। तो अब आप इस तनाज़ुर में देखिए तो आपको, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। आप, आई एम सॉरी फॉर दैट। थैंक यू सो मच डॉक्टर रहमान साहब के लिए बहुत सारी तारीफ होनी चाहिए। उन्होंने बड़ी खिदमत है एयरफोर्स में और पाकिस्तान के लिए लड़े हैं बाकायदा, और मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। रोशनिया के उन्होंने जिक्र किया, आपको बताया। हमारी खुशकिस्मती कि हमारे दरमियान में थे, तो हमने शिकागो में कहा कि इनको ज़रूर अपने प्रोग्राम में ज़हमत दें। और मेरे बड़े काबिल एहतराम मेरे उस्ताद भी, और कम्युनिटी में काफ़ी एक्टिव, ट्रेड कमेटी के प्रेसिडेंट और चांसलर हैं ईस्ट वेस्ट यूनिवर्सिटी के, जनाब वसीउल्लाह खान साहब हमारे दरमियान में हैं। वसीउल्लाह खान साहब ने ईस्ट वेस्ट यूनिवर्सिटी बना के एक ऐसी कील अमेरिका में ठोक दी है कि कहीं भी जाते हैं
تو نام ہوتا ہے ڈاکٹر وسیع اللہ خان، جنہوں نے یونیورسٹی امریکہ میں بنائی ہے، بہت بڑا کارنامہ انہوں نے انجام دیا ہے. ڈاکٹر صاحب کے لیے بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے، بہت خدمات ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے درمیان میں 23 مارچ جو بڑا امپورٹنٹ ڈے ہے اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے. اس قلیل وقت میں جتنی بھی تھوڑی بات ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب بالکل میں احترام خڑا ہونا چاہتا ہوں. نہیں ڈاکٹر صاحب زیادہ عمر نہیں ہوئی ہے. آتش ابھی بھی جوان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم منتظمین، محترم خواتین حضرات، میں بہاولپور پنجاب میں بڑا ہوا ہے. اسی کالج بہاولپور سے بی اے پاس کیا تھا میں نے، اور سمسٹر میں ٹیچر ہو گیا تھا 70 بعد پلس 2 میں بی اے کرنے کے بعد. پھر وہ والد مرحوم ملتان میں دفن ہے. پھر وہ بی ایڈ وغیرہ کیا، ہمیں کیا. پھر انڈیانا آ گیا 27 برس کی عمر میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے. تو وہ اسلامی جامعہ طلبہ میں تھا، تو وہ کہہ دیا گیا تھا کہ حلال گوشت کھانا چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو ایک ہندو کانپور انڈیا کے تھے، وہ پرکاش شرما، وہ پی ایچ ڈی کرے سوشالوجی میں. وہ بہت زیادہ، وہ اور ان کی بیگم شریفی جی جو ہیں وہ رمضان میں میرے لیے سحری بناتی تھیں. مگر ایک روز پاکستان کے ایشو پر ان سے بحث ہو گئی تو کتابیں پڑھنی شروع کی. میری حیثیت آپ تو سب کے ایک بھائی کی ہے، اور اصل میں اپنے آپ کو صرف ایک طالب علم سمجھتا ہوں. تو اس بحث کے بعد سے جو کتابیں میں نے پاکستان کے قیام کے بارے میں پڑھی، ان میں سے 5 کتابوں کے نام لوں گا. چودھری محمد علی صاحب مرحوم، جو بعد میں وزیر اعظم ہوئے اور انہوں نے پہلا دستور دیا تھا 1956 میں، وہ ان کی کتاب ایمرجنس آف پاکستان مسلم لیگ کے پوائنٹ آف ویو سے واحد کتاب ہے. قائد اعظم کی کوئی کتاب نہیں ہے، لیاقت علی خان کی کوئی کتاب نہیں پاکستان کے قیام پر. اور جو بزرگ ہمارے، ہم 2nd 3rd جنریشن کے لوگ ہیں. اور تو چودھری محمد علی صاحب کی کتاب کے علاوہ کانگریس کی طرف سے انڈیا ود فریڈم آف کلام آزاد کی کتاب، ان کا انتقال 1958 میں ہو گیا تھا، اور انہوں نے اس کتاب کے 30 صفحے روک دیے تھے چھاپنے. وہ 88 میں چھپے، 1988 میں نے وہ پوری کتاب پڑھی. لیکن میرے باس جو مجھے لائے تھے برکلے میں، نامدار خان صاحب پنجاب میں نے جو چکا تھا، اس کے بعد میں ڈپٹی سیکرٹری ہو گیا تھا وہاں. تو انہوں نے فرمایا کہ وسیع تم وہ کتاب پڑھو لینڈن موزلے کی دا لاسٹ ڈیز آف برٹش راج، کیونکہ برطانیہ اپنے دستاویزات ہر صدی کے بعد جاری کرتا ہے. 2000 میں وہ سب نکلی تھی. انہوں نے فرمایا کہ ایوب خان اور نہرو نے کچھ دستاویزات پڑھنے کی اجازت دی تھی لینڈن موزلے کو، جو یہیں کے امریکہ کے تھے صحافی. تو دا لاسٹ ڈیز آف برٹش راج. اور اس کے بعد اب جب 2000 آ گیا تو پیٹرک فرینچ نے ایک کتاب چھاپی ہے لبرٹی اور ڈیتھ. وہ سب سے زیادہ مستند ہسٹری ہے پارٹیشن کی. لیکن ایک ہندو جو جیسلمیر کے تھے اور پارلیمنٹ کے ممبر تھے، انڈین پارلیمنٹ کے، بلکہ بی جے پی کے وزیر دفاع بھی تھے اور وزیر خارجہ بھی، جسونت سنگھ، ان کی کتاب 2009 میں دلی میں چھپی، اس کا نام ہے جناح. سب سے اچھی کتاب وہ ہے، اور اس میں بالکل نئی باتیں ہیں. کہ جو ریڈ کلف نے ایوارڈ دیا تھا وہ بھی ماؤنٹ بیٹن میں بدلا، اور اس وجہ سے انہوں نے بات نہیں کی. بعد میں ریڈ کلف نے، جو پریوی کونسل کے ممبر تھے، اور اب تو وہ نہرو کے وہ جسونت سنگھ نے لکھا ہے کہ نہرو مرتے دم تک یہ بات کہتے تھے سب سے کہ ہم نے صرف ایکسپیڈیشنس کی وجہ سے پاکستان کا قیام مانا تھا، اور پاکستان کو چلنا نہیں تھا اور ہم سے واپس مل جانا تھا. اللہ تعالیٰ جو جانو کے احسان سے وہ بات پوری نہیں ہوئی. میں طالب علم پڑھتا رہتا ہوں چیزوں کو. تو ایک بات تو یہ ہے، اقبال کا مشہور قطعہ ہے، غلامی کیا ہے؟ ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہیں وہی زیبا. حسن و زیبائی یہ فلاسفی میں ایسٹیٹکس جو ہے اس کی برانچ ہے حسن کی، اور ایتھک جو ہے زیبائی یعنی اخلاق کی بات ہے. بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردانہ ہوتی آنکھ ہے بینا. اب یہ اگست میں ہم انشاءاللہ اب وہ وبا ختم ہو رہی ہے، ہم پریڈ بھی نکالیں گے یہیں دیوان ایونیو پر.
تو 74 سال ہو جائیں گے پاکستان کو آزاد ہوئے، اس میں سے 33 سال فوجی حکومت رہی۔ میں ایک جمہوریت میں یقین رکھتا ہوں اور فوجی حکومت کے خلاف ہوں، لیکن یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ ایوب خان کے دور میں پاکستان کا دنیا میں جو وقار تھا نہ اس سے پہلے ہوا نہ بعد میں ہوا۔ آپ اگر USIS سے کے جو فلم کمپیوٹر پہ نکال کر دیکھیں، جب وہ 61 میں آئے تھے اپنی بیٹی کو لے کر، تو وہ کینیڈی نے، جیکلین کینیڈی نے اور جان کینیڈی نے استقبال کیا تھا، وہ دیکھنے کے لائق ہے۔ تو یہ اس کے بعد ضیاء الحق صاحب کا دور آیا، پھر پرویز مشرف صاحب کا۔ مجھے ضیاء الحق صاحب سے ایوب خان کا تو ایک جھلک دیکھی تھی پنجاب یونیورسٹی میں، لیکن ضیاء الحق صاحب کے ساتھ کیونکہ ڈاکٹر نصیف ہمارے صدر ہیں بورڈ آف ٹرسٹیز کے، وہ مجھے لے گئے تھے 88 میں، تو وہ ان کے ساتھ کھانے کھانے کا موقع ملا تھا۔ پرویز مشرف صاحب سے ان کے استعفے کے بعد یہیں شکاگو میں ملاقات ہوئی اور انہوں نے مشرف پلان واضح کیا تھا کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے۔ یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ایک ادارے کا نام ہے اسٹریٹجی فورم، اس کو پرائیویٹ CIA کہا جاتا ہے۔ تو اس کے ڈائریکٹر جو ہیں جارج فریڈمین، ٹام فریڈمین نہیں، جارج فریڈمین، ان کی کتاب اگر آپ پڑھیں امریکہ سیکریٹ وار، اور ابھی ان کی کتاب چھپی ہے دا نیکسٹ 100 ایئرز، تو وہ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ امریکہ 2 ایٹم بم گرانے والا تھا لاہور پر اور اسلام آباد پر، اور پھر امریکہ نے دھمکی دی تھی کہ تم لوگ طالبان کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے اور ہمیں ان کو نہیں مارنے دے رہے، تو ہم انڈین فوج کو زمینی راستے سے 2 ایٹم بم گرانے کے بعد کابل میں بلائیں گے تاکہ وہ ہماری مدد کریں۔ اور یہ بات پرویز مشرف نے بھی اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ تو وہ جارج فریڈمین لکھتا ہے کہ کوئی ایسی بات کی پاکستان نے کہ امریکہ اس پر عمل نہیں کر سکا۔ جارج W. بش کا زمانہ تھا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ 9 ملکوں کا ایک بلاک بن چکا ہے، دفاعی بلاک بھی اور تجارتی بلاک بھی، اس میں چین اور روس شامل ہیں۔ روس بے تحاشا فوجی امداد دے رہا ہے طالبان کو، اور وہ ٹرمپ نے معاہدہ جو کیا تھا، اب موجودہ صدر جو ہیں ہماری یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، وائٹ سپریمیسسٹ ہیں وہ، تو مجھ سے کہنے لگے کہ اب تو اگلے سال وہ ہندو ماں کی بیٹی جو ہے صدر ہو جائے گی امریکہ کی۔ تو میں نے کہا جارج یہ جو بائیڈن کہاں جائے گا، چپ رہے وہ۔ تو وہ میرا خیال ہے اس کو ختم کرنے کا منصوبہ ہے۔ تو یہ اس ملک میں کیا ہوگا اور وہ تو ہم یہاں کے شہری ہیں دیکھیں گے۔ 3 باتیں اور عرض کروں گا مختصراً اقتصادی طور پر، اور محترم بھائی عبد الرحمان صاحب نے جو کچھ فرمایا ہے وہ خود ہی اس کے ماہر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا ہے اور مہارت دی ہے، عملی مہارت بھی۔ اقتصادی طور پر میں یہ عرض کروں گا کہ ہم پاکستان جو ہے، موجودہ پاکستان، وہ پسماندہ ترین علاقہ تھا برطانوی ہند کا۔ مشرقی پنجاب اکنامکلی زیادہ ایڈوانس تھا اور مغربی پنجاب کم تھا، 2 ملیں تھیں شہر، اور ہم نے چونکہ ہم سے مسلمانوں سے چھینی تھی برطانیہ نے حکومت، تو اس لیے ہم انگریزی تعلیم میں پیچھے رہ گئے تھے۔ سر سید نے اگر وہ کام نہیں کیا ہوتا علی گڑھ یونیورسٹی بنانے کا تو کیا ہم حشر ہوتا ہمارا، وہ اور بات ہے۔ اب خدا کے احسان سے ہم بعض علوم میں ہندوؤں سے بہت آگے نکل گئے۔ ایٹمی ٹیکنالوجی میں اور مسل ٹیکنالوجی میں انڈیا بہت ڈیکیڈ تک ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کا وجود جو ہے پاکستان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی رحمت ہے، کیونکہ ہم آبادی میں 7واں حصہ ہونے کے باوجود انڈیا سے مقابلہ کرتے ہیں کہ یہ اب آپ دیکھیں کہ یہاں بہت سے ارب پتی ہندو موجود ہیں امریکہ میں۔ یونیورسٹی مسلمانوں نے ہی بنائی، ایک ہی یونیورسٹی وہاں سے آنے پر 1400 ہجری میں اس کا آغاز ہوا تھا، اور وہ $5,500 ہمارے پاس تھے، 1000 ہم 7 لوگوں نے دیے تھے، 5 لوگوں نے دیے 7 میں سے۔ تو اب کوئی $125 ملین کا کیمپس ہے اللہ تعالیٰ کے احسان سے، اور بہت سالوں سے یونیورسٹی کا نام بیسٹ کالجز گائیڈ میں آتا ہے، جو یونیورسٹی ورلڈ رپورٹ ہر سال چھاپتی ہے۔ تو اقتصادی طور پر میں یہ عرض کروں گا کہ یہیں دیوان ریونیو پر بھرت برائی ایک BJP کے یہاں کے ہیڈ ہیں، تو وہ شیخ محمد راجپوت صاحب ہمارے ٹرسٹی ہیں، ان کے کہنے سے میں بھی آ گیا تھا، فنڈ ریزر تھا کسی کا،
तो मुझे मेरा तारुफ कराया गया उनसे, तो मुझे वो चुटकी लेने की आदत है। मैंने कहा अब तो वो डेवलपमेंट UNDP की रिपोर्ट में छपी है, वो हमारा GDP बहुत आगे बढ़ गया है पर कैपिटा वगैरह। कह रहे डॉक्टर साहब वो बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं। डॉक्टर साहब मैं ये सिलसिले वाले सब झूठ बोलते हैं। मैंने कहा एक ही दिन में 2 मुल्क आज़ाद हुए थे, तो कुछ तो मुकाबला होना चाहिए। खैर मैं 7 बारी मेज पे बैठ गया तो कहने लगे डॉक्टर साहब आप बम्बई गए? मैंने कहा नहीं, मैं मुंबई कहीं कभी नहीं गया, दिल्ली में सिर्फ 93 में गया था एक दफ़ा। कहने लगे मैं बम्बई से हूँ, एक दफ़ा कराची गया हूँ, मैंने किसी आदमी को बगैर शर्ट के नहीं देखा कराची में। होंगे बहुत से होंगे मगर उन्होंने देखा नहीं। कहने लगे बम्बई में ये हाल है कि जैसे दीवान एवेन्यू है तो ये 11 बजे रात को बहुत सी सड़कें बंद हो जाएंगी और लोग जो है मर्द औरतें बच्चे सड़क पर सोएंगे, फुटपाथ पर नहीं सड़क पर सोएंगे। भरत भाई ने कहा था, वो अभी जिंदा हैं और मौजूद हैं यहाँ, उनसे भी तस्दीक करेंगे मेरी बात की। और कहने लगे 5 बजे जब वो हॉन्क करेंगी गाड़ियाँ तो फिर लोग उठ के चले जाएंगे। 250 के करीब मर चुके होंगे। तो म्यूनसिपैलिटी का एक ट्रक आएगा और वो यहाँ शिकागो में जो ग्लोबल काउंसिल है फॉरेन रिलेशंस की, उसमें मैंने ये सवाल पूछा था एक दफ़ा। मैंने कहा पाकिस्तान में भी बहुत बड़े बड़े शहर हैं, कराची बहुत बड़ा शहर है, लाहौर बहुत बड़ा शहर है, हमारे यहाँ क्यों नहीं सड़कों पर सोते लोग? तो भरत भाई ने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है उसमें। आखिरी बात अर्ज करूँगा कि आज बस जनूबी एशिया की आबादी दुनिया की आबादी का 1/5 है, कोई 1.5 अरब लोग जो हैं वहाँ रहते हैं और 8 मुल्क बन गए हैं। उसमें 4 मुसलमान हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव, और 2 हिंदू हैं, इंडिया और नेपाल, और 2 बुद्ध हैं, भूटान और श्रीलंका। 6 मुल्क जो हैं अपनी हिफाजत के लिए इंडिया की जारियत के खिलाफ हमसे मदद मांगते हैं। अभी इमरान खान गए थे श्रीलंका और वो श्रीलंका गए थे और वो जो इस्तकबाल उनका हुआ है और सबसे बड़ा एजाज जो है वो लाकर दिया गया। तो मेरी नाजिद राय में मुगलिया सल्तनत की विरासत पाकिस्तान को मिल गई है, उस्मानिया सल्तनत की विरासत तुर्की को मिल गई है। मैं 5 दफ़ा चीन गया हूँ और हर चीनी मर्द औरत 8 शहरों में 22 यूनिवर्सिटियों में जिस कदर पाकिस्तान की इज्जत है, जैसे ही वो अमेरिका का एक ख़ास प्रेस्टीज है हायर एजुकेशन में, जैसे ही मैं कहता कि मैं पाकिस्तानी अमेरिकन हूँ, दावतें कर रहे हैं, तोहफे दे रहे हैं, तो चीन और रूस और पाकिस्तान और तुर्की और ईरान, अफगानिस्तान और आपको ताज्जुब होगा नेपाल और मलेशिया, ये 9 मुल्कों के ब्लॉक में शामिल हैं। और अब ज़मीनी रास्ते से हम कराची को काठमांडू से मिलाएंगे। क्या बात, आप अंदाजा करें इस बात का। अब वो जो बन रही है काराकोरम हाईवे तो पहले बनी थी, अब जो वो सीपैक बन रही है, तो जैसे ही वो रेल शुरू होगी सबसे पहले मैं वहाँ जाकर काठमांडू जाना चाहता हूँ। हरे राम हरे कृष्ण फिल्म देखी जी किसी वक्त। तो ये मैं ये अर्ज करूँगा कि हम आखिरी बात अर्ज करूँगा कि हम पाकिस्तानी अमरीकी उन पाकिस्तानियों में हैं जो इल्म में आगे हैं, खुशहाली में आगे हैं, और हमें अपने वतन के लिए अपने बच्चों को, अपने साथियों को पढ़ाना चाहिए आगे और इल्म में आगे बढ़ना चाहिए और पाकिस्तान को भूलना नहीं चाहिए। हमने पाकिस्तानी अमेरिकन कांग्रेस बनाई भी है, उसमें लड़ाई झगड़ा हुआ है, मगर वो सब ठीक हो जाएगा। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका और मुतज़मीन का कि ये बहुत अच्छी तकरीब हुई इस वक्त। वाक़िर दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब के बारे में जिस तरह का मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे नहीं बहुत सारे शिकागो में लोग हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं, बड़े लोग यहाँ से पढ़ कर गए और ये हकीकत बात है मिडल ईस्ट में बड़ी अच्छी जॉब कर रहे हैं। जिससे पूछो खान साहब के ये सेरा जाता है कि कितने पाकिस्तानियों के डिग्रीज जो हैं ईस्ट वेस्ट यूनिवर्सिटी से हैं और वो बड़े अच्छे ओहदों पे फाइज हैं और ट्रेनिंग लेने के बाद और तजुर्बा हासिल करने के बाद बहुत सारे तो डायरेक्टर्स भी अपनी कंपनी के बन चुके हैं। डॉक्टर साहब की खिदमत बहुत ज़्यादा है इस कम्युनिटी के लिए, इस मुल्क के लिए और पाकिस्तान का नाम रोशन इन्होंने किया। इसी तरह हमारे दरमियान में एक उभरता हुआ सितारा मौजूद है। बहुत ही कम उम्री में सियासत में इन्होंने हिस्सा लिया और एक नाम रोशन किया कि पाकिस्तानी एक ज़माने में आप डॉक्टर साहब जब यहाँ पर थे तो जिस वक्त आए 40 साल पहले, अहमद भाई तकरीबन लगभग 50 साल पहले, तो बड़ी मुश्किलों से लोग मिलते थे कि आपको उर्दू बोलने वाला मिल जाए या किसी इदारे में आपको कोई आदमी मिल जाए, उसको अपनी बात आप समझा सकें कि आपको क्या चाहिए। आज बुशरा अहमद को मैं ज़हमत दूंगा
وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں کہ انہوں نے بہت ہی کم عمری میں سیاست میں حصہ لیا اور پاکستانی کمیونٹی کا اور پاکستان کا نام روشن کیا. بشرا امی والا کے لیے بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے تاکہ یہ مستقبل میں جن لوگوں کو شکوہ ہوتا ہے کہ میں یہ بھی کہوں گا کہ بہت سارے کہتے ہیں لوگ کہ ایوانوں تک ہماری بات نہیں جاتی, یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی بات پہنچائیں گے. میں آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ اپنے بچوں کو اس قابل کریں کہ وہ امریکہ کے قومی دھارے میں شامل ہوں اور پاکستان اور پاکستانی کمیونٹی کا لیے کام کریں. جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اکثریت میں انڈینز آپ کو نظر آتے ہیں, آپ کورٹ پہ چلے جائیں وہاں آپ کو انڈین نظر آتے ہیں, ایسا ہو کہ پاکستانی بھی ہر جگہ نظر آئیں. میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ سے شیئر کروں گا. میں ٹریول کر رہا تھا, ایک لڑکی مجھے سب سرو کرنے کے لیے آئی, ایئر ہوسٹس, اس کا نام سنا تھا. اور یہ 11 والے واقعے کے بعد میں آپ بتا رہا ہوں. میں ہیوسٹن جا رہا تھا تو میں نے اس سے کہا کہ آر یو پاکستانی, میں نے زور سے جان بوجھ کے کہا تو لڑکی تھوڑی سی ڈر گئی. تو میں نے ان سے کہا نائس ٹو سی پاکستانی ایوری ویئر. تو اپنے دوست کو موٹیویٹ کریں پلیز, اور اپنے بچوں کو کہ بیٹا یہ کمیونٹی کے لیے ضرور کام کرنا ہے. بہت سارے لوگ اشتراک کرتے ہیں پاکستانی پروگرامس میں آنے کے لیے, اپنے بچوں کو نہیں لاتے. ہاں ابھی عمران خان آ جائے یا کوئی نیم برانڈ آدمی آ جائے, پھر دیکھیں خواتین کیسی آتی ہیں, بچے کیسے گولا گٹا بن کے آتے ہیں, آپ دیکھیں تو مزہ آ جاتا ہے دیکھ کر. تو بشرا امی والی کے لیے بہت ساری تالیاں. جی Okay, say it. Okay, Assalamualaikum everyone. बहुत बहुत खुशी हुई है that I know मेरी उर्दू थोड़ी छोटी पोटी है तो इंग्लिश में बात करूंगी. Say it. Okay. Okay, good. Just wanted to make sure. So my name is Bushra Amiwala. Thank you for that lovely introduction. I am the youngest Muslim elected official in the United States, and I'm a Pakistani American. Thank you, thank you, thank you. I'm so excited to be here today among so many distinguished guests and honorable members and people from the community to celebrate the Pakistan Resolution Day today. It means a ton to me. I want to talk a bit about how I got involved in local government and how I got involved in service in the community and why it is important for all of us to get involved at this level. And I also want to talk about some of the impact that I've been able to make the 2 years of service that I've had on the Board of Education. So first, the way that I got involved in politics, I actually decided to work for a Republican senator's campaign, U.S. Senator Mark Kirk, and on that campaign, my job was to go door to door to various registered Republican voters' homes and ask them a series of 5 questions. And the first question on that list was, on a scale of 1 to 10, how fearsome are you of an Islamic terror attack on U.S. soil? Showcasing the deep-rooted Islamophobia that most people from a specific party have in the way that they view Muslims in society. And upon asking that question, I found the answer would be 10 or above, very fearsome. And I inserted question number 1.5, which was, why? Because when else would I have the opportunity to talk to someone who not only fundamentally disagrees with me, but is scared of me? So I asked why, and many people would respond, well, you're the first Muslim person I've ever met, which was in Glenview, Illinois, so probably was not true, but I was the first seemingly Muslim person that someone had met. So as a result, someone on that campaign saw leadership ability and potential in me that I did not see in myself at the time, and they asked me to run for public office. I was 19, a freshman in college at DePaul University, but decided that ignorance is bliss and decided to run ahead anyways. And I ran against a 16-year Democratic incumbent, seasoned politician. He had been in office for 16 years and I was 19 years old, and I mobilized thousands of first-time voters, people who voted for the first time. But ultimately, I lost. And I got breakfast with the person I ran for office against, and he encouraged me to run for office again. He said, you mobilized so many people in the community. You activated so many first-time voters, so many young people, so many Pakistanis, right, Desis, and people who historically have not paid attention to politics at this level, at this scale. So I did. 6 months later, decided to run for public office again. And alhamdulillah, in April 2019, I went down in the Chicago History Museum as the youngest Muslim elected official in the United States.
And I'll just share just quickly, one last thing. Just very quickly, some of the impacts that we've had on the Board of Education and things that we've been able to accomplish since then. So we have brought halal food on Fridays for our Muslim students, which is something that we're very proud of. Har Friday ko halal khana milta hai hamare Muslim bachcho ko, and which is a huge accomplishment in Skokie especially. And another thing, today I testified in front of Senate for the entire state of Illinois. We are making it mandatory to teach Muslim achievements in curriculum, meaning sikhana कि इस Muslim ने क्या किया society में, and ये classrooms में teach करना, which is a huge accomplishment in every single public school in the state of Illinois. And this was passed in Senate today, actually. Very well, very well. Thank you. Outstanding. Thank you. So I'm really proud to see that, because growing up, the only time that I would hear about Muslim Americans was when we were talking about 9/11. And I'm so proud that today we finally have our contributions to society in math, science, technology, and all different instances highlighted in U.S. government and in U.S. History classes. So thank you all. This is an honor to speak in front of you all today, and I really appreciate the time. Thank you. Thank you. थैंक यू सो मच बुशरा एमीवाला। आप एक वाकया है, कहानी सुन लें छोटी सी। एक बुजुर्ग थे, एक पौधा लगाने लगे। बुजुर्ग की उम्र काफी ज्यादा थी, कुछ मनचले नौजवान उनका मजाक उड़ाने लगे। कहने लगे, बुजुर्ग आप पौधा लगा रहे हैं, जब तक ये दरख्त बनेगा, फल देगा, तो आप इस दुनिया में नहीं होंगे। तो कहने लगे, बेटा ये मैं आपके लिए लगा रहा हूँ ताकि आप इससे फल भी हासिल करें और उसकी छांव में भी बैठे। तो बुशरा एमीवाला वो आज पौधा उन्होंने लगाया है। मेरा बेटा पीछे बैठा हुआ है। मेरे बेटे के स्कूल में ये गई, तो इन्होंने आज से मेरे सामने 3 या 4 साल पहले मेरा प्रोग्राम ज्वाइन किया था, लाइव मेरे स्टूडियो में आई थी। तो मेरे बेटे ने कहा कि आपके स्टूडियो में आई थी, तो उसे 4 साल 3 साल पुरानी बात याद है। उसने कहा कि मेरे स्कूल में आके उन्होंने तकरीर की और बच्चों को बताया, और वो बड़ी फ्रेंडली थी। तो इसी तरह अगर आप भी अपने बच्चों को बताएंगे कि कल के, क्योंकि मेहमान यही है, अब हमें यहीं रहना है। मैं बहुत सारे लोगों से पूछता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है, चले पाकिस्तान, वहीं से यू टर्न, नहीं मैं नहीं जा सकता पाकिस्तान। तो आपको जो अपनी आने वाली जनरेशन, खास तौर पे जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, वहाँ पर जरूर भेजिए। डॉक्टर, इंजीनियर्स, IT हमने बहुत बना लिए हैं, अब सिटी में एंटर होने की जरूरत है। और वो लोग जो मैं कहूँगा कि यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए, जिनके यहाँ पे नुसरत भाई बैठे हुए हैं जो पीपल्स पार्टी के एक्स प्रेसिडेंट हैं, जैसी वाइट से इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। आप लोग हमारे बच्चों को उनसे इंट्रोड्यूस करवाइए, ये जिम्मेदारी है। यू डन योर जॉब। अब बच्चों को चाहिए कि वो आगे आए। और जिस तरह आज हम यहाँ पे 23 मार्च बना रहे हैं, हम भी कोई एक ऐसा दिन भी मुकर्रर करेंगे कि ये देसियों का दिन है, कि देसियों ने यहाँ पे तरक्की की, और देसी बच्चे जो अमेरिकन, उन्होंने यहाँ पर लोगों को एक अच्छी पैर बताया। एक तो ये यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम है, लोग एक दूसरे को लाइनें नहीं देते, जगहें नहीं बताते, उनको मोटिवेट नहीं करते। प्लीज अपने लोगों की हेल्प करें, जोश बन के जिंदगी गुजारें। मुझे जोश इस मामले में बड़े अच्छे लगते हैं। वो कम्युनिटी सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है उनका। वो 10 बच्चे भी होते हैं, 20 बच्चे भी होते हैं, एक साथ रहते हैं, चाहे वो बूढ़ा ही क्यों नहीं हो जाता बच्चा। अपने लोगों को ओन करना सीखें, ये हमारे लोग हैं। बताएं, ये पाकिस्तानी, ये परचम हमारा है, किसी और का नहीं है। हमें ही इसको ऊपर लेके जाना है। अगर हमारी ऐसी बातें रहेंगी तो एक दिन हम लोग आगे नहीं बढ़ सकेंगे। प्लीज, मैं अपनी चीफ गेस्ट आज के प्रोग्राम की उनको अपने प्रोग्राम में भी खुशामदीद कहते हैं और शिकागो में भी खुशामदीद कहने के अलावा ये भी बताते चलें कि शिकागो की एक अच्छी बात यह कि इस महफिल में तमाम पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखने वाले मौजूद हैं और तमाम फिल्मों से ताल्लुक रखने वाले लोग मौजूद हैं। शिकागो की एक अच्छी बात यह कि हम हर प्रोग्राम में जाते हैं और अपना प्रोग्राम समझते, चाहे वो पॉलिटिकल हो, नॉन पॉलिटिकल हो। इस तरह ये कम्युनिटी का प्रोग्राम है, यहाँ पे भी सब लोग आए और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। SOP के तहत जो हमें रिक्वायर्ड थी लोगों की, उससे ज्यादा लोग नजर आ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तानी प्रोग्राम है। मैं अपनी चीफ गेस्ट मोहतरमा मोरिक आबरोल साहब को जहमत दूंगा कि कुछ अल्फाज 23 मार्च के हवाले से और कम्युनिटी के लिए कहें। आने वाले वक्तों में ये आपकी बड़ी हेल्प आउट करेंगी और पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बहुत अहम और कलीदी किरदार अदा करेंगी। मोरिक आबरोल साहब हमारे दरमियान, बहुत शुक्रिया। वो अल्लाह उल्लाह भी करेंगे। Assalamu alaikum and good evening, ladies and gentlemen. It's an honor for me. It's an honor for me to be here.
in front of the entire Pakistan, like not the entire, but such a huge Pakistani community. And I express my gratitude to the organizers of this wonderful event to commemorate the Pakistan Resolution Day, which set the path to realization of long cherished dream of Pakistan, of Muslims of subcontinent for their homeland. On behalf of the Consulate General of Pakistan and myself, I extend my heartiest felicitations to all of you and our community on this auspicious occasion. I am the acting Consul General right now. The Consul General could not be here today due to his some personal commitments. So I would be giving you the remarks and conveying the messages of the Prime Minister and President of Pakistan on this occasion. As you know, that this is a historic day in our history. 81 years ago, the Muslims of the subcontinent, under the inspiring leadership of the father of the nation, Muhammad Ali Jinnah, adopted a resolution demanding a separate homeland for them, which culminated in the creation of Pakistan. This historic day is celebrated in Pakistan and abroad with great zeal and vigor. The Pakistan of today is embarked upon a path to progress and prosperity. Our government is endeavoring to make the country a true Islamic welfare state and is committed to establishing a society which is based on compassion and justice, and where every person can contribute towards socio-economic development and to the best of his ability. While celebrating this auspicious day, we should also reflect upon the Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah's three golden principles: unity, faith, and discipline. These principles not only keep us united and determined, but also serve as a torchbearers for our progress and prosperity, no matter where we are and what challenges we are faced with. On this day, we should also not forget our Kashmiri brethren, who have long been the victim of Indian-sponsored terrorism and are forced to lead a life of misery. We reaffirm our resolve to continue our political, diplomatic, and moral support for our Kashmiri brothers at every international forum. I would also like to take this opportunity to commend the services and contributions of our large, hard-working, and thriving Pakistani diaspora in the US. Pakistani diaspora in the US continues to positively contribute to the socio-economic development of not only their adopted country, but also their motherland. I am delighted to witness that the Pakistani community in the US teems with nationalistic pride. Their love and support remains crucial for our brethren back in the homeland. I also commend the valuable contribution of our community during the ongoing pandemic and in helping the communities and society, which I am confident they will continue with the same vigor. I wish to assure them that the government of Pakistan recognizes them an asset and is committed to ensure their welfare by initiating policies to involve them in economic and governance activities. The government of Pakistan is continuously working to improve the quality and pace of services to our diaspora. As you all know, that after partial conversion of visas online last year, in April 2019, the government has now completely switched the visa service online from January 31st, 2021. Now the Pakistani online visa system is open for citizens of 191 countries. And you are no more, including the United States, and you are no more required to visit the embassies and consulates along with your passports, and you can obtain visas from the comfort of your homes, which is a huge achievement by the government of Pakistan. Apart from that, with the launch of Pakistan Roshan digital account, a new era of banking has started for overseas Pakistanis. These accounts provide innovative banking solutions for millions of overseas Pakistanis, including non-resident Pakistanis and Pakistan origin card holders, seeking to undertake banking, payment, and investment activities in Pakistan. For the first time ever, overseas Pakistanis have been provided an opportunity to remotely open an account in Pakistan through an entirely digital and online process without any need to visit a bank branch. Opening of the account will require only a basic set of information and documents. Banks have been asked to complete all necessary customer due diligence within 48 hours.
Now, with a view to encourage non-resident Pakistanis to invest in their homeland, Naya Pakistan certificates have also been introduced by the government in a variety of currencies, including the US dollar, at a very attractive risk-free rates and in both conventional and Sharia-compliant forms. Similarly, a new procedure, which is which is very important for the diaspora, procedure for issuance of succession certificates and letter of administration has also been simplified by NADRA. As you are aware that earlier upon the death of a family member, considerable time was consumed in obtaining the letter of administration for immovable properties and succession certificate for movable properties. Now, without going to the courts, the legal heirs can obtain letters of administration and succession certificates through a quick 5-stage process facilitated by succession facilitation units operated by NADRA in Pakistan. I again thank you all for having me here. It's my honor and pleasure to come here and represent the Pakistani government. And thank you so much for commemorating the Pakistan Day. Thank you so much. And a very happy Pakistan Day to all of you. थैंक यू सो मच मुल्क, आपको हम खुशामदीद भी कहते हैं और आपकी खिदमत से यकीनन लोगों को बहुत सारी परेशानियां जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो सॉल्व भी करेंगी आप। यकीनन आप लोग बड़े महसूस हो रहे होंगे इस प्रोग्राम से। और इस प्रोग्राम में एक अहम शख्सियत है, मैं थोड़ी देर के लिए उनको बुलाऊंगा। इस नौजवान ने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल भी हासिल किया तनसाजी, माजरत मैं थोड़ा सा गाढ़ा वर्ड यूज कर लिया, बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले में। फिर उन्होंने दोबारा एक कंपटीशन में हिस्सा लिया, फिर दोबारा एक ट्रॉफी जीत ली, फिर एक कंपटीशन में हिस्सा लिया, फिर एक और ट्रॉफी जीत ली। लेकिन ट्रॉफियां तो जीत रहे थे। मैंने पूछा भाई लोग क्या आते थे क्या आपको, क्या 2 आदमियों की रेस में सेकंड आते थे क्या? तो ये इन्होंने बताया कि 400-500 आदमी उस कंपटीशन में हिस्सा लेते थे और ये पाकिस्तान का फ्लैग लेके खड़े होते थे और बताते थे कि मैं पाकिस्तानी हूं। मैं अब्दुल मालिक को बुलाऊंगा स्टेज पे थोड़ी देर के लिए। तो प्लीज इस नौजवान की बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। और ये अगले महीने एक कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं। दुआ को है कि जीते और उनको सपोर्ट की भी बहुत जरूरत है। मोहम्मद मालिक के लिए दोबारा से बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। तो पाकिस्तान का तसस्सुर से नाम रोशन कर रहा है। बहुत शुक्रिया मालिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सबको मेरा सलाम। बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे प्रोग्रामों में आना कि पाकिस्तान के हवाले से मैसेज तो पूरी दुनिया में दे रहा हूँ। मैं खुद जहाँ पे भी जाता हूँ, जिस स्टेट पे जाकर मुकाबला खेलता हूँ, पूरे पाकिस्तान का फ्लैग पहले। मैं यही मानता हूँ कि पाकिस्तान ने मुझे इज्जत दी, मेरे को नाम दिया, इतना जो पहचान दी। मैं एक बात कहता हूँ, पहले पाकिस्तान है, फिर अब्दुल मालिक है। कहीं अफसोस ये होता है कि मैं क्रिकेटर नहीं हूँ। अगर मैं क्रिकेटर होता तो मैं बड़ी इज्जत दी जाती। मैं ऐसा बॉडी बिल्डर, लोग जानते नहीं है पाकिस्तान में इस चीज़ की मतलब अहमियत नहीं है। सिर्फ क्रिकेट के अलावा किसी अहमियत नहीं है कि अगर मैं जीतता हूँ तो मुझे खुशी होती है कि आर्मी की तरफ से पहली कॉल आती है मुझे कि अब्दुल मालिक तुमने अचीवमेंट किया। मीडिया का भी शुक्रिया जो मीडिया मुझे इतना प्रमोट करता है, पाकिस्तानी चैनल सारे मुझे हाईलाइट करता है। BBC न्यूज़ पे मेरा सारा चला हुआ है और दूसरे मवालिक में मेरे सारे आर्टिकल आते हैं। लेकिन अफसोस इस बात है कि अपने लोग हमारे जो हैं जिनको सपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन वो सिर्फ बातें जो दिल की बात है वो बोलूँगा। 30 मार्च में खड़ा हूँ कि हमें सबको इक्वल होना है, कि हमें दुनिया को दिखाना है पाकिस्तान कितनी मजबूत और कितनी प्यारी कंट्री है और हर स्पोर्ट को इतनी इज्जत मिलती है। लेकिन कहते हैं कि मेहनत जितनी करो अल्लाह ताला इज्जत इतनी देता है। कि मेरा ही मानना है पहले पाकिस्तान है फिर अब्दुल मालिक। और पाकिस्तान को जितना सपोर्ट कर सकते तो करो, कि पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे तो हमें सपोर्ट मिलेगी कि पाकिस्तान हमसे बढ़ के। थैंक यू। और मैं तो ये कहता हूँ कि कामयाबी के लिए कि मेहनत इस खामोशी से करो, मेहनत इस खामोशी से करो कि तुम्हारी तरक्की धूम मचा दे। तो धूम मचानी है पाकिस्तानियों ने, तो थोड़ी देर में धूम ही मचाते हैं। और मैं एक बात ये कहूँगा कि तालियां बजवानी है आप लोगों के लिए। मेरे ख्याल में अरसे दराज बाद पाकिस्तानी कोई ऐसा प्रोग्राम है जो हमने टाइम रखा था कि नमाज के फौरन बाद शुरू करेंगे। मैं आप लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग टाइम पर आए और ये पहला प्रोग्राम मुझे लग रहा है 25 साल में अमेरिका में जो वक्त के ऊपर शुरू हुआ है। बहुत सारी तालियां आप लोगों को, क्योंकि हम पर एक स्टैंप लग गई है 7 बजे का टाइम है तो 8 बजे शुरू होगा, ये तो आना ही नहीं सारे मसले। तो बहुत शुक्रिया। तो पाकिस्तानी का प्रोग्राम है, थोड़ा
मजेदार थोड़ा सा गाने गनों भी होंगे हमारे दरमियान में, खाने का भी इंतजाम बिल्कुल रेडी है। तो कभी गुब्बारे फाड़े हैं आप लोगों ने? पाकिस्तान जिंदाबाद, गुब्बारे फाड़े जबरदस्त तरीके से, जिसके करीब जो गुब्बारा नजर आ रहा है किसी का सर नहीं फाड़ दीजिएगा, बस ये जरा ख्याल रखिएगा। फाड़े पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, नारे लगाइए भाई, पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो मैं हमारे दरमियान में एक बड़े अच्छे गुलकार भी हैं और शिकागो की खूबसूरत आवाज भी है। हमारे दरमियान में बैठने में अगर वो गाना ना गाएं तो महफिल अधूरी रहेगी। हमारे पास कोई हाई फाई किस्म का सिस्टम नहीं है, ये एक ऑर्डिनरी सी प्रोग्राम था, बड़ी जल्दी में ऑर्गेनाइज किया गया, सिर्फ 2 दिन लगे, अक्रेडिट पार्क इंटरनेशनल को जाता है। तो अपनी पुरजोर तालियों में इस्तकबाल कीजिए मुजफ्फर कुरैशी। समर भाई बहुत शुक्रिया और आप आए इस प्रोग्राम में, यहाँ पर बीच में। थैंक यू सो मच। मिली नगमा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, यहाँ पे कोई सिस्टम वगैरह तो लगा हुआ नहीं है। आप सबको सबसे पहले तो पाकिस्तान डे मुबारक हो बहुत बहुत, और मुजाहिद भाई और तौसीफ का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। तो एक पाकिस्तानी नगमा सुना रहा हूँ बगैर म्यूजिक के, तो आप लोग मेरा साथ दीजिए। है ना कैरियोकी। अब आगे यहाँ जब पहले अटेम्प्ट हो गया कामयाब हो कहाँ हेलो अच्छा, थोड़ी टेक्निकल खराबी हो रही है तो बेयर विद मी। तो हिम्मत तो हिम्मत जो करे जुए आसमान अपनी होगी पहचान।
थैंक यू सो मच मुजफ्फर भाई, आपने महसूस किया कि कैसे साउंड सिस्टम का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, और ये पहली दफा पता चला कि जब म्यूजिक आ रही है तो आपकी आवाज के साथ तो म्यूजिक थोड़ी सी दब जाती है। बहुत शुक्रिया। और अब क्योंकि खाने का भी टाइम हो गया है तो मैं खवातीन से कहूँगा कि पहले प्लीज आप लोग खाना निकालना शुरू कीजिए, और ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम की तरफ है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। आइए लेडीज जो हैं Thank you.